दुख हमारे बख्शियन अपनी कलकारी। दुख हमारे बख्शियन, दुख हमारे बख्शियन अपनी कलकारी। मन पाछत फल दितियन, मन पाछत फल दितियन नानक बलिहारी, नानक बलिहारी। दुख हमारे बख्शियन, दुख हमारे अपने बालक आप रखिए, अपने बालक आप रखिए। सुख शांत सहज आनंद पाए, सुख शांत आनंद पाए। पूरन पैसे पैसे दुख हमारे बख्शियन, दुख हमारे बख्शियन।
भगत जना की बेनती, भगत जना की बेनती सुनी प्रभु आप, सुनी प्रभु आप। रोग मिटाए जो शब्द असी गायन किया है गुरु ग्रंथ साहिब के 820 भाव 820 अंक के शब्द सुशोभित है। दिस शब्द इज कंपाइल्ड एट 820 नंबर पेज ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब जी। शब्द का सिरलेख है बिलावल महला पंजवा। बिलावल राग विच गुरु अर्जन पातशाह का शब्द है। Those who study Gurbani and those who want to learn something from Gurbani, they know कि जब असी शब्द गायन करते हैं उहदे विच सानू रहाव लिखिया मिलता है। So रहाव means pause. Rahav means central idea of the Shabad. One has to understand first of all Rahav की कहता है। इस शब्द का रहाव है अपने बालक आप रखियन पार ब्रह्म गुरदेव, सुख शांत सहज आनंद पे पूरन पई सेव रहाव। इस शब्द का रहाव मैनू की दसदा है जिसनों असी गायन करन वेले टेक जो गायकी का सिद्धांत है उसके मुताबिक सानू रहाव तो गायन करना चाहिए क्योंकि बार बार असी उसकी टेक उत्थे गा के उत्थे वापस आते हैं। एक एम्फेसिस दिता जाता है, एक मैसेज उत्ते। सो पॉपुलर है इस पंक्ति तो इस करके मैं उसमें तो गायन किया क्योंकि कई बार शब्द जिस पंक्ति तो पॉपुलर हो जाता है
ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, if I sing the shabad ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, everybody knows that shabad and everybody thinks ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਵੈਨ ਆਈ ਸਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਫਰਮ ਰਹਾਉ, ਨੋਬਡੀ ਨੋਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, because we are only concerned about the first verse whenever Ragi Singh ji sing here. Even when ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਏਕਤ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਏਕਸ ਬਿਨ ਸਭ ਤੰਤ ਹੈ, ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਮਾਏ ਰਹਾਉ। ਇਹ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਹਾਉ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਰਹਾਉ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੈਡੀਟੇਟ ਔਨ ਵਨ ਗੋਡ, always be one with God, otherwise तू जो कुछ करता है सब बिजनेस है। एकस बिन विदाउट वननेस with God सब तंद है, तंद is just mere business। एकस बिन सब तंद है, सब मिथ्या, मिथ्या मीन्स फॉल्स, झूठ, मोह माए तेरी गलत ख्यालों नाल अटैचमेंट है। If I come to Gurdwara and I matha take here and I do part or I listen kirtan or I just do prakarma here, इत्थों इंज घूम के मत्था टेके मैं सोचा ਇਹਦੇ ਨਾਲ मेरा बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं वेल्दी हो जाऊँगा, मेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, मेरे घर कभी कोई बीमार नहीं होएगा, then it is mere business। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। We never ask this question। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁੱਛੀਏ। then we have to find out, that is called sincere query। कि मैं किसी ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। So we can ask Bhai Sahib ji, Bhai Sahib ji, do I come to Gurdwara to get Ferrari car? He will say no, cars are not given here। If it will be given, then first of all I will get that car। Bhai Sahib ji, ਕੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਮੇਰਾ ਬਾਇਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਵੇਗਾ? then he will say no। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਮਸ ਆਊਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਡਮ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਮ ਬਾਰਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਹੈ ਇਆਣੇ। ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਇਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੋਨ ਅਪ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪੈਸਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਆਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੈ ਇਆਣੇ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬੋ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਇਆਣਾ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਬੱਚਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, then the purpose of Gurdwara starts। purpose of Gurdwara, मेरे राम हम बारक हर प्रभ के हैं इयाणे, धन धन गुरु गुर सतगुरु पांदा, पांदा मीन्स टीचर।
एक स्कूलों में टीचर होता ਉਹਦੀ ਗੱਲ नहीं चल रही, क्योंकि स्कूल का टीचर ਤੁਹਾਨੂੰ कह सकता है शराब नहीं पीनी चाहिए, आप शाम ਨੂੰ पी सकता है। ਇਹਦਾ ट्रांसलेशन टीचर नहीं होएगा। लेकिन ਸਾਡੇ ਕੋਲ वर्ड्स नहीं ने, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ। सतगुर सानू पढ़ाता है, धन धन गुरु गुर सतगुर पांदा जिन हर उपदेश दे के विजडम दे के कि ये सियाने सानू इयाने तो सियाना करते हैं। दैट इज़ द परपज़ ऑफ गुरुद्वारा। और सियाने किस तरह होंगे ने? कम हियर हम्बली, डोंट कम विद योर कास्ट, अपना कास्ट का लेबल लगा के ना, अपनी रिचनेस दे और अपनी डिग्री दे और व्हाट्सोएवर अक्ल यू हैव और स्टेटस यू हैव, उस दे लेबल दे नाल नहीं आ। जस्ट लाइक अ हंबल ह्यूमन बीइंग बन के आ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਇੰਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੈਡ ਰੱਖਿਆ, ਹੈਡ ਮੀਨਸ ਆਪਣਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਦਾ ਹੰਬਲਨੈਸ ਸਟਾਰਟਸ। मैं अपनी अक्ल रखता हाँ। गुरु पातशाह कहते ने मन की मत त्यागो हरजन, हुक्म बूझ सुख पाइए रे। तू अपनी मत रख दे और रख के तू समर्थ वड्डा, मेरी मत थोड़ी राम, तुहाडी मत ज्यादा है मेरे कोल घट है। देन द पर्पज ऑफ गुरुद्वारा इज सर्व्ड। पर्पज ऑफ गुरुद्वारा इज नॉट कि तुसी इत्थे आओ ते मार्बल और सोना चढ़ाना है। पर्पज ऑफ गुरुद्वारा इज नॉट कि इत्थे फ्लावर्स लियाओ और चढ़ा दियो, डॉलर्स रख दियो। दैट इज टू रन द सिस्टम। बट पर्पज इज मन की मत त्यागो हरजन। असी गुरुद्वारे बैठते हैं, इट्स दिस इज कॉन्ग्रीगेशनल सिस्टम, दिस इज नॉट स्पिरिचुअल प्लेस कि सिर्फ इत्थे रब जी रहते हैं। रब जी सब जगह रहते हैं। पीपल थिंक रब जी किसी टैंपल रहते हैं। अकॉर्डिंग टू गुरु ग्रंथ साहब वी कैन अश्योर दिस मैसेज कि गुरु पातशाह कहते ने रब जी सब जगह रहते हैं, नॉट ओनली इन अंडर वन रूफ, इन बिटवीन फोर वॉल्स, अमंग पीपल। लोकां दे विच रब जी रहते हैं। ਅਸੀਂ सोचते हैं लोगों के विच जाके बैठ जावांगे, संगत हो गई। नहीं, लोगों में संगत नहीं हो गई। जदों असी बैठते हैं साडा कॉमन फैक्टर की रहेगा? सतगुर पातशाह। असी सतगुर जी नूं सुनते हैं और सतगुर जी की जदों गल सुनते हैं, द मोमेंट आई लिसन सिंसीयरली लिसनिंग और हीयरिंग विच फर्क है। हीयरिंग होंदा इधरों सुनिया इधरों कट दिता। सिंसीयर लिसनिंग होंदा सुनिया वो हार्ट अंदर गया। हार्ट अंदर जान दी की साइंस ने कि असी उन्होंने प्रैक्टिस करते हैं। जे सुनिया इधरों इधरों बाहर कट दिता फिर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। दूजिया नूं सुनाने वास्ते करते हैं तो वो सिर्फ हीयरिंग है। मैनूं गल याद आ गई है, पति और पत्नी आपस में गल्लां कर रहे सी तो पत्नी हमेशा पति नूं कहती है तुसी ठीक जगह शूज़ नहीं उतारते हो, ठीक जगह अपने कपड़े नहीं रखते हो, हमेशा गंद पा देंगे हो। तुहानूं कितनी बारी समझाया, तुसी एक कान तो सुनते हो दूजे कान तो बाहर कट देंगे हो। तो पति कहता मैं तो एक कान तो सुन के दूजे कान तो बाहर कट देंदा, तू दोनों कन्ना तो सुन के सब कुछ मुँह तो बाहर कट देंदी है। ओनली यू जस्ट डिलीवर द मैसेज। असी दूजिਆਂ ਨੂੰ डिलीवर करते हैं। हमेशा ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ठीक नहीं ने। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਖਾ ਦੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ओके रहना चाहिए, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਖਾ ਦੇਵੇ ਸਾਡਾ ਡੌਰੀ ਸਿਸਟਮ रहना चाहिए, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਖਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਵਾਂਗੇ और पिलावांगे। दैट मीन्स असी भी उसी पत्नी वांगू हाँ जो इत्थों सुनती है और इत्थों दस दिंदी है, बस कि असी एक दूजे नूं सुनाण वास्ते हाँ। नहीं, पूछिए गुरु पातशाह जी मैं तुहाडे कोल आया हाँ
ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, that is like postman. I'm not postman. That is not like truck. I'm not truck who brings the goods and just delivers. नहीं, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੀ ਯਰ ਵਿਜ਼ਡਮ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? Why wisdom is required? Why it is said गुरु बिन कोर अंधार है, गुरु बिन समझ ना आवे? क्यों विजडम चाहिए क्यों है? यह क्वेश्चन कोई नहीं पूछता। लोग पूछते हैं रिलीजन दी की जरूरत है, अमृत छकन दी की लोड़ है, पाठ करन दी की जरूरत है, गुरुद्वारे जान दी की जरूरत है। यह तो असीं सारे क्वेश्चन करते हाँ, पर यह कभी नहीं पूछा विजडम चाहिए ही क्यों है, गुरु की मत लैनी ही क्यों है। साध संगत जी, गुरु की मत इस करके लैनी है कि द मोमेंट आई फील कि मैं सिक हाँ, मैं बीमार हाँ, मैं फुल ऑफ फ्लॉज हाँ, मेरे एक्शंस ऑफुल होंदे ने, ऑसम नहीं होंदे ने। आई एम नॉट परफेक्ट बट आई कमिट मिस्टेक्स एट एवरी स्टेप, एवरी मोमेंट, एवरी डे। मनमुख गर्भ जूनी नित पाउंदा जियो, मैं हर रोज जितने नरक सो मनमुख भोगै, मैं हर वेले हैल विच ही रहिंदा। परफ्यूम्स लगांदा, वधिया कार विच बैठदा, पर मेरा बिहेवियर और मेरा थॉट प्रोसेस है मैं हर वेले नरक विच ही रहिंदा। मैं बीमार हाँ। साध संगत जी, ये बहुत अच्छी स्टेट ऑफ माइंड है, बहुत अच्छी अवस्था है कि मैं फील करता हाँ कि मैं बीमार हाँ। असी तो फील ही नहीं करते। जेड़ा बीमार होएगा वो गुरु को लाके कहेगा मेरा वैद गुरु गोबिंदा, हर हर नाम औखद मुख देवै काट जम फंदा। मनु काइंडली हेल्प करो, आई एम सिक, यू आर माई डॉक्टर, यू आर माई स्पिरिचुअल डॉक्टर। असी तो समझते अनपरफेक्ट। न्यूयॉर्क मेरी सिस्टर के ग्रैंडसन नूं बुखार चढ़ गया, ब्रोंकाइटिस ज़्यादा खराब हो गया और उदा ब्रीथ करना मुश्किल हो गया। कदी उन्होंने एक बारी एक्सपीरियंस होया सी डॉक्टर को जान दा। डॉक्टर ने उन्होंने टीका लाया सी, उन्होंने पेन हुई सी। इस तो इलावा डॉक्टर ने जी दवाई दी वो बड़ी बिटर सी, सो दे दिमाग च क्लीयर सी डॉक्टर मीनस इंजैक्शन, पेनफुल इंजैक्शन एंड बिटर मेडिसिन। जदों असी उस बच्चे नूं क्या डॉक्टर को जाना है, द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग। नो, कैन नॉट ब्रीथ, कैन नॉट ईट, खंघ लगी हुई है और कहता मैं डॉक्टर को नहीं जाना। I was looking at the child, everybody was pushing, trying their best कि डॉक्टर को ले जाइए, but why this child was refusing? Because child, बच्चा ये मन ही नहीं रहा कि मैं बीमार हाँ। जे मान जाए तो ओके, I want to get rid of this problem, kindly take me anywhere। असी अपने बारे सोचिए कि असी मनते हाँ कि मैनू एंगर बॉदर करता है, कि असी मनते हाँ कि मैं अपना बैलेंस लूज कर जाता हाँ। वैन एवर आई एम गोइंग, कोई गलत कार पार्क कर गया है, गलत रॉन्ग तरीके दे नाल कार पार्क उसने की हुई है, मैनू बॉदर करता है। कोई भी गलती करता है यह चीज़ मैनू बॉदर करती है। मेरे घर विच मैनी मैंबर्स ने, ये सारे मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलते कि यह मैनू बॉदर करता है। भावें मेरा घर है, भावें मेरा बिजनेस वर्ल्ड है, भावें मेरा कॉर्पोरेट सेक्टर है और भावें मेरी कौम दे, मेरे धर्म दे लोकी ने, मेरी सोसाइटी है,
मेरी कंट्री है, कि यह मैनू बॉदर करता है। मैं हर वेले बॉदर हो जाता हाँ। मेरी कार जा रही है और कोई दूसरा मेरे को ओवरटेक गलत करके चला गया, या किसी ने इंडिकेटर नहीं दिता, कोई अचानक आ गया, जो तो भी कोई रॉन्ग ड्राइव करता है, कि मैनू बॉदर करता है। मतलब मैं अपना बैलेंस लूज कर जाता। डू आई स्टार्ट अब्यूजिंग दैट पर्सन हु ड्रूव रॉन्ग, और मैं ਉਹਦੇ अगेंस्ट कोई कमेंट पास करता हाँ कि मैनू ये चीज़ां बॉदर करदियां ने। साध संगत जी, असी कौन हाँ? मेल फीमेल, माँ प्यो, बच्चे, धीआं पुत्र, भैन भरा, किसी दी नूंह, किसी दी सस, इट डजंट मैटर। अपने बारे सोचिए कि मैनू ये बॉदर करता है। जे बॉदर करता है तो मैं सोचा, कोई भी कुछ करता रहता है, मैं इंबैलेंस हो जाता हाँ। जदों मैं सोचा ना तो मैं मान लिया कि मैं बीमार हाँ, और जे मान लिया मेरा कौन फिक्सअप करेगा? किसी मेडिसिन नाल फिक्सअप नहीं होता, सतगुरु जी इनू फिक्सअप करते हैं। सतगुरु जी मैनू समझाते हैं, काम क्रोध काया को गल है, तेरी बॉडी खराब हो जाती है, तेरा एड्रेनलिन लैवल डिस्टर्ब हो जाता है, अप हो जाता है, तू हाइपर हो जाता है। देख, फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हटाए, पुरानियां गल्लां और किसी तरह एनमिटी दा एंगर तू कैरी ना करया कर अपने शोल्डर ते, ऐ तैनू हर वेले बॉदर करेगा, तैनू हेडेक होएगी, तेरा बीपी हाई हो जाएगा, तेरियां अखां लाल हो जाएगी, तू शिवर करेगा, तेरा वॉल्यूम हाई हो जाएगा। देख, तैनू बॉदर करता है। जिस दिन सानू ये चीज़ फील होती है कि मैं बीमार हाँ, दैट इज़ वेरी गुड अवस्था, बट दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट स्टैप। उन्होंने जपजी साहब कहते हैं धर्मखंड। उस दिन इंसान धर्मखंड अंदर एंटर कर गया जिस दिन फील करता है मैं बीमार हाँ। और जो बीमार महसूस करता है, द पर्सन हु रियलाइजेस आई एम सिक, डेफिनेटली सर्चिंग फॉर द डॉक्टर। वो जाता है डॉक्टर को, डॉक्टर में जाके अपने सिम्टम्स दसता है, सिम्टम्स सुनन सार डॉक्टर डायग्नोज कर लेता है। डायग्नोज करन तो बाद डॉक्टर उन्होंने कहता है, अच्छा मैं दसा प्रिकॉशनस किहड़ियां लैनियां, दवाई किहड़ी खानी है। असी मन जाते हैं, असी सिंपली कहते हैं यस काइंडली टेल मी। साध संगत जी, यह जपजी साहब विच ज्ञान खंड की अवस्था है। असी कहते हैं ज्ञान खंड का आखो। कर्म, कर्म मीन्स अपना फलसफा, अपनी फिलॉसफी मैनू दसो। कुछ भी नहीं करना पिया, कोई चौकड़ा नहीं मारना पिया, कोई मेडिटेट नहीं करना पिया, कोई टंग पे खड़ा नहीं होना पिया, कोई ब्रेकफास्ट ओमिट नहीं करना पिया, कोई फास्टिंग नहीं करनी पई, कोई ठंडे पानी नाल नहीं नहाना पिया, कोई भी ऐसी सो कॉल्ड रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस नहीं करनी पई। सिंपली मेरा मन मान गया मैं बीमार हाँ, एंड मैं डॉक्टर को गया। डॉक्टर ने मैनू जो कहा, यह साडी सब दी रोज़ की प्रैक्टिस है। द मूमेंट वी फील आई एम सिक, वी गो टू द डॉक्टर, वी कॉल, वी गेट द अपॉइंटमेंट एंड देन वी गो टू द डॉक्टर। साध संगत जी, यह धर्मखंड तो ज्ञान खंड की अवस्था आ गई। मैं सतगुरु कोल आया हाँ कि मैं बीमार हाँ। जिस दिन असी मन लेंदे हाँ बीमार हाँ, उस दिन असी उस बालक, उस बच्चे वांगू यानी इनोसेंस की अवस्था विच आ गए। और जदों ही आए अपने बालक आप रखन, हुण वो डॉक्टर मेरा सतगुरु पातशाह मेरे सामने एक गल रखते हैं कि तैनू की करना है। अपने बालक आप रखन
ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰਦੇਵ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਵ, ਦੇਵਾ, ਦੇਵਤਾ, ਸੰਤ, ਸੰਤਨ, ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਵਰਡਸ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਵਨ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਰਸਨ, ਸੰਤਨ ਮੀਨਸ ਮੈਨੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਰਸਨਸ। ਬਟ ਐਜ਼ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਸੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਰਚੂਸ, ਗੁੱਡ ਡੀਡਸ। ਸੰਤਨ ਮੀਨਸ many good deeds, many ideals. Virtues are opposite to vices. Vices मेरी बीमारी है। To get rid of the vices I came to the Guru. Guru मनु vices ਦੇ against समझा रहे virtues. Vices ਦੇ ਨਾਲ मैं disturb ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਜਸਟ ਆਸਕ whether you are atheist or you are communist or whatsoever you are, you want peace or not, you want happiness or not? If you want really happiness, ਜੇ ਤੈਨੂੰ really peace ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਜ਼ ਮੈਨੀ ਐਜ਼ ਡਾਲਰਸ, ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਕੇ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਯੂ ਵਾਂਟ ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਯੂ ਵਾਂਟ ਬੈਲੈਂਸ, ਯੂ ਵਾਂਟ ਪੀਸ, ਕੈਨ ਨਾਟ ਬਾਏ ਫਰੋਮ ਐਨੀਵੇਅਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗੇਸਟ ਇਨਫਿਨਿਟ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ, ਵਰਚੂਜ਼ ਦਾ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਦਰ ਕੈਸੇ ਛੂਲੀਏ? ਵਾਈ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਅਸਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਆਈ ਲੀਵ ਦੈਟ ਡੋਰ? Why should I ignore that? ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲ ਲਾਈਫ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਦਰ ਕੈਸੇ ਛੋੜੀਏ ਜੋ ਦਰ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਗ੍ਰੇਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਏਥੀਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਗੋਡ ਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਯੂ ਵਾਂਟ ਪੀਸ, ਯੂ ਵਾਂਟ ਹੈਪੀਨੈਸ, ਯੂ ਵਾਂਟ ਹਾਰਮੋਨੀਅਸ ਲਾਈਫ, you want good relationship with everybody, okay, follow the vices or follow the virtues, it is up to you. If you want sincerely, truly peaceful life, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਖੇੜਾ ਵਰਸਿਸ ਮੱਥਾ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਘੂਰ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਹੇਟਰੇਡ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਖੋਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਛੋੜਨਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੋਂਗ ਆਈਟਮਸ, ਮੇਰੇ ਫਾਲਸ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੈਬਿਟਸ ਦੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਐਸੈਟ ਹੈ, ਮਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਛੋੜਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਤੈਨੂੰ ਰਿਲੀਜਨ ਬਿਟਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ। ਕਬੀਰ ਜੈਦਰ ਆਵਤ ਜਾਤੇ ਹੋ ਹਟਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੱਬ ਜੀ ਤੇਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। There is God resides within you, and that is the storage. You don't have to go anywhere. जैदर आवत जाते हो। मैनू जदों दिल करे मैं इंट्रोस्पेक्शन करके अपने अंदर चला जाऊँ, nobody can stop me. Anybody can say you cannot bow your head like this. Okay, मैं ऐज ही रवां, पर मैं अंदर सोच के अपने थिंकिंग प्रोसेस इंट्रोस्पेक्टिव हो जावां, कोई मैनू नहीं रोक सकता। मैनू पुट्ठा टांग दिओ,
ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਡੋਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਐਨੀਬਡੀ ਕੈਨ ਸਟਾਪ ਟੂ ਐਨੀਵਨ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੈਦਰ ਰਾਵਤ ਜਾਤੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਆਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਹਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, nobody can stop, why you ignore that door। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ means your journey starts and you get the destination immediately, even within fraction of second। ਉਹਨੂੰ ਨਿਮਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਖ ਦਾ ਝਪਕਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਪੀਫਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਰਡਸ ਲੈ ਲਵੋ, ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਪਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ। ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਇਨਰ ਵੌਇਸ, ਵਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਰੀ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇ, ਇਹਦੀ ਪਾਕਟ ਮਾਰ ਲੈ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਚੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਦੈਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਟੂ ਲਿਸਨ ਦਾ ਟਰੂਥ ਫਰੋਮ ਇਨਸਾਈਡ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਦੀ, ਵਿਲ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾਈ ਪੈਗਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖੁਦਾਈ ਪੈਗਾਮ, ਮੈਸੇਜ ਅੰਦਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਫਾਲਸ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਜੀਵਿਆ ਕਰ, ਆਪ ਨੜਾ ਗਿਰਵਾਨ ਮੈਂ, ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਵੇਖ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਫੋਲੋ ਪੀਪਲ ਔਰ ਯੂ ਫੋਲੋ ਦਾ ਸਟੇਟਸ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਲਾਚੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਫਾਲੋ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਸਿਖਾਏ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਐਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਫੇਵਰ ਆਫ ਦਿਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੂ ਇਜ਼ ਅਟਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਭ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਸ਼ੀ ਸੈਡ 55। ਅੱਛਾ 55, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੀ ਸੰਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਆ। ਹੈ ਤੁਸੀਂ 55 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਆਏ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ 10 ਆਈ ਹੈਵ ਹਰਡ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾਈ ਆਫਟਰ 45 ਈਅਰਸ। ਨਹੀਂ, ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਪੇਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਆ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਭਦੀ ਰਹੀ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਕੇਮ ਟੂ ਯੂ ਨਾਓ। ਦ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੈਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੈਡ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਹ ਜੰਮਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਆਏਗੀ ਫੋਲੋਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ, ਫॉर एवर, ਇਮੋਰਟਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ, ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਭ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਦਰ ਆਵਤ ਜਾਤੇ ਹੋ ਹਟਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸੋਦਰ ਕੈਸੇ ਛੋੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਟਰੂਥਫੁਲ ਲਿਵਿੰਗ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲ ਲਾਈਫ ਦਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਆਈਡੀਆਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਰਚੂਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ?
तू इंट्रोस्पैक्शन क्यों नहीं करता? यू फॉलो पीपल। इस करके आसा की वार दी पौड़ी आती है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। सिंबल रुख सराय रा अत दीर्घ अत मुझ ओई जे आवे आस कर, सारी पौड़ी ना हिपोक्रेसी के अगेंस्ट है, श्लोक सारा। और हुण पौड़ी आती है, पौड़ी च कहते ने ए दुनियादारी छड्ड, ए हिपोक्रेसी वाली लाइफ छोड़, डोंट फॉलो पीपल। इफ यू फॉलो पीपल, पीपल दी नोशन दे अकॉर्डिंग पीपल दी प्रैक्टिस की है, लोग अवगुणा की बनने कंठ। लोकी मिसटेक्स करते रहते हैं और मिसटेक्स नू अपना एसेट कैपिटल समझते हैं, ओदी हैबिट बन जाती है। हैबिट नू कहते हैं मेरी नेचर है, मैं की करा। नेचर तो कुदरत होती है। दिस इज योर हैबिट एंड दिस हैबिट यू हैव डेवलप्ड, गॉड हैज नॉट गिवन यू एंड दिस हैज नथिंग टू डू विद योर सो कॉल्ड पास्ट लाइफ। ਇਹ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਾ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਛੱਡ, ਦੁਨੀਆ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜ। ਕੱਪੜ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਫੈਬਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਸੁਣੇ ਸੀ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੁਣੇ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਛੋੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਬਾਹਰ? ਵੇਅਰ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੱਜਿਆ, ਇੱਕ ਦੱਬੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾਏ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਭੀਫੀ ਰਸਨ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਨਾ ਜਾਪੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ ਸਮਾਏ। ਕੋਈ ਦੱਬਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਲਚਰਸ ਵਾਸਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਰਸੀ ਇੱਕ ਦੱਜਿਆ, ਇੱਕ ਦੱਬੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਾੜਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੈਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾਏ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਭੀਫੀ ਰਸਣ ਪਾਏ। ਭੀਫੀ ਰਸਣ ਹੁੰਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਉਹ ਵਲਚਰਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਨਾ ਜਾਪੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਮਾਏ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਵਾਟ ਵਿਲ ਗੋ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਨॉट ਫਾਈਨਲ ਅਥਾਰਟੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਅਰਥ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਫॉरगिव ਮੀ। ਪਰ ਕੰਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਥੀਮ, ਉਹਦਾ ਤੱਤ, ਉਹਦਾ ਐਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਹੈਪੀਨੈਸ, ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਸੁਖੀ, ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ, ਪਲੀਜ਼ਡ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾइंड। ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਰਹੇਗੀ? ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ। ਦੁਨੀਆ ਡਜ਼ ਨॉट मीन ਛੱਡਣਾ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਵੋ। ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਛੱਡ, ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ, ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ, ਆਪੇ ਆਪ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਗ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਂਦੇ, ਰਾਹ ਭੀੜ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ। ਜਿਤਨਾ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਵਨਨੈਸ ਵਿਦ ਗੋਡ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੰਗਾ ਦੋਜ਼ਖ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸਿਆ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ। ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਫੀਅਰਫੁਲ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਟ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਸਤਾਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਸਤਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਰ ਅਵਗੁਣ ਪਛਤਾਵਣਾ, ਮੈਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਮਿਸਟੇਕਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ, ਅਵਗੁਣ ਛੋੜ, ਗੁਣਾ ਕੋ ਤਾਵੋ, ਵਰਨਾ ਕਰ ਅਵਗੁਣ ਪਛਤਾਈ ਜਿਓ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਰਿਗਰੈਟ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਡਰ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ। ਜੋ ਡਰ ਐਸਾ ਹੋਏ ਜੋ ਗ੍ਰੇਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਵੈਦਰ एथिस्ट और कम्युनिस्ट, साध संगत जी
कोई दुनिया का मनुख कम्यूनिस्ट कहे ना मैं गॉड ਨੂੰ बिलीव नहीं करता, ओके ਉਹਦੀ मर्जी, लेकिन ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ इफ यू डोंट बिलीव इन गॉड वाई डोंट यू ईट फ्रॉम नोज, वाई यू ईट फ्रॉम योर माउथ, बिकॉज यू नो दैट इज द लॉज ऑफ नेचर, बट इनडायरेक्टली you believe in God क्योंकि ਤੈਨੂੰ नहीं पता the laws of nature is the will of God, laws of nature है। तू पैरों नाल क्यों चलता है, हत्थों उत्ते क्यों नहीं पुट्ठा चलता, तू सिर दे पार क्यों नहीं चलता जे तू कम्युनिस्ट है। दुनिया का कोई मनुख नहीं कह सकता मैं गॉड तो मुनकर हाँ, कोई इंसान नहीं कह सकता आई डोंट बिलीव इन गॉड। लॉज ऑफ नेचर ਨੂੰ बिलीव करता है, मुंह तो खाता है, और जिस तरह सारे हसते ने उंज हसदा है, जिस तरह सारे रोंदे ने उंज रोंदा है, जिस तरह सारे माँ के पेट तो पैदा होंदे ने उंज ही पैदा होंदा है, कोई भी उसका डिफरेंट तरीका नहीं है। शांति चाहना है, सुख शांत सहज आनंद पए पूरन पई सेव, सतगुर की मत लवो ना, इनू सेवा कहते हैं। गुरु की सेवा करया कर। हुण जे मैं गुरु की सेवा रुमाला चढ़ाना समझा, रुमाला तो असीं वैसे चढ़ाते ही हैं, कारपेट साफ करने मैं सेवा समझा, ये तो सेवा असीं सफाई वास्ते करते ही हाँ। लंगर पकाने नूं सेवा समझा, असीं अपना कॉमन किचन कॉन्ग्रीगेशनल सिस्टम इस सारा ना लंगर छकन वास्ते करते ही हाँ। पर दिन रात किवें करिए, 24 आवर्स कर सकते हो, रुमाला चढ़ाते रहो, कारपेट साफ करते रहो, लंगर पकाते रहो, फाइनली पता लगेगा गुर की सेवा का मतलब होता है गुरु ने जो किया है उन्होंने फॉलो कर, दैट इज कॉल्ड गुर की सेवा। गुर की सेवा करो दिन रात, दिन रात की जा सकती है। दिस सेवा इग्नोर, वी ऑलवेज इग्नोर दिस सेवा। मनु मेरा बचपना 30 साल हो गए मनु अमेरिका गया, लेकिन बचपन मनु इंडिया का याद है जो इंडिया कभी भी प्रोग्राम होंदा सी, प्रोग्राम स्टार्ट होना, इत्थे रागी सिंह जी ने बैठ के कीर्तन करना, द मूमेंट वो व्याख्या शुरू होनी, द मूमेंट कथा शुरू होनी, प्रबंधक सज्जा ने उठ के कहना साध संगत जी माइया अगे बेनती है उठ के जाके लंगर पकाओ, मीनस तुसी ना सच सुन लेना, जाओ लंगर पकाओ। गुर की सेवा नहीं की, लंगर तो असीं घर भी पकाने ही हाँ, लंगर पकाना भी चाहिए। जिहड़ा गुरुद्वारे का लंगर मैं उसनूं कंडैम नहीं कर रहा, कंडैम कर नहीं सकता, असीं आप पकाने आप खाने, लंगर साडा बड़ा एक बहुत ग्रेट बेसिक फंडामेंटल है, दैट इज डिफरेंट इशू। पर गुर की सेवा दिन रात केड़ी होंदी है, दिन रात होंदा है गुरु नूं फॉलो करना। गुर की सेवा करो दिन रात, सुख सहज मन आवे शांत, तेनों सुख मिलेगा, पेशेंस आएगी, शांति आएगी। सुख शांत सहज आनंद पे पूरन पई सेव, सेवा थाए पै गई, फुलफिल हो गई। रहाओ भगत जना की बेनती सुनी प्रभाप, द मोमेंट यू फॉलो द वर्च्यूज, तब मानो अरदास सुनी गई। ऐ नहीं कि मैं क्या सी मेरा पुत्र होएगा तो मैं फलानी जगह जाके चोला चढ़ावांगी, ऐ नहीं कि साडी नौकरी लग जाएगी तो असीं फलानी जगह जाके ब्राइब करांगे, नहीं। मैं ऐ सोचिया सी कि मनु किसी तरह पेशेंस और चैन मिल जाए। पेशेंस और चैन, मैं तुहाडे दर ते आया, तुसीं मैनू विजडम ग्रांट की, मैनू हुण चैन आ गया। एक बीबी जी टीवी ते देख के मैनू कहंदे ने आई फॉलो योर प्रोग्राम, मैं क्या अच्छा टीवी ते देखदे हो जिहड़ा अजकल टाइम टीवी चढ़दी कला ते आ रहा है, कहंदे हाँ, मैं क्या अच्छा इंडियन टाइम ते 9 o'clock तुहाडा मैं प्रोग्राम देखदी हाँ, ओके फाइन। कहती पहला भी मैं अपने घर सारिਆਂ ਕੋਲੋਂ अपना कहना मनवाती सी, पर रूल करके डोमीनेट करके रुस के यल करके, पर हुण मैनू जाच आ गई है, मैं अपना कहना तो मनवा लैंदी हाँ, पर वैरी हंबली, वैरी सॉफ्टली, वैरी स्वीटली। हुण स्वाद किहदे च है, इट डिपेंड्स हाउ यू वॉन्ट टू लिव योर लाइफ। तुहानू डेली अपने एम्पलॉइज नाल, अपने वोटी बच्चों नाल यल करके गुस्सा करके हैल विच रह के स्वाद आंदा, ओके एंजॉय योर हैल। पर जे सारे घर दा सब कुछ ठीक हो सकता है, टाइटैनिक पैचअप हो सकता है और ड्राउन होने तो बच सकता है जिंदगी के ओशन विच। एवरीडे साडा टाइटैनिक डुबदा है। भगत जना की बेनती सुनी प्रभाप, जिस वेले मैं बेनती की मनु संतोख दियो, दैट डे अरदास स्टार्ट्स। सत संतोख,
संतोख इज कंटेंटमेंट। सत संतोख होवे अरदास तां सुन सद बहाले पास। अरदास डज नॉट मीन वर्ल्डली थिंग्स नूं मंगन आए ते मिल गईयां। अरदास मीन्स मैं जो दुनिया चो किसी भी जगह तो नहीं मिल सकता सी, सहज संतोख, पेशेंस, हंबलनेस, सॉफ्टनेस, वो मैनू तुहाडे दर ते मिलता है। दैट इज वर्च्यूज। भगत जना की बेनती वर्च्यूज नू फॉलो करना। रोग मिटाए जीवाले जाका वड प्रताप। मैं ते वाइसिस दे नाल हर वेले मरदा रहिंदा सी। वाइसिस नू जम कहंदे ने, जम नू डीमन थॉट्स कहंदे ने। डीमन थॉट्स दे नाल हर पल लोकी समझदे ने मरण तो बाद कोई डीमनस होणगे। वाइसिस नू डीमनस कहंदे ने। डीमन थॉट्स दे नाल जीना। रोग मिटाए जीवालियन, मनु जिंदा कर दिता। एक बूंद गुर अमृत दीनो का अटल अमर नाम हुआ। नाउ आई गॉट द इमॉर्टल स्टेट ऑफ माइंड। मैं तुहाडे दर ते आया, मैं बच्चा बनया, मैं इनोसेंट होया, मैं क्या मनु विजडम दिओ। गुरु पातशाह कहते रोग मिटाए जीवालियन, मतलब मेरा रोग मिटा के मनु जिंदा कर दिता। मैं सोचा सी जिंदा मीन्स हार्ट बीट शुरू हो गई, नहीं, मेरी एक आत्मक हार्ट बीट हुई है। आत्मक सोल दी हार्ट बीट नू पवन रूपी गुरु दी मत चाहिए है। पवन रूपी गुरु दी ऑक्सीजन चाहिए है। उन्होंने पवन गुरु पानी पीता माता तरत मात कहते हैं। तो रोग मिटाए जीवाले जाका वड प्रताप। इस शब्द के आखिरली पंक्ति कहते हैं दुख हमारे बख्शियन, मेरे वाइसिस कट दिते, दुख हमारे बख्शियन, अपनी कल तारी। एक कल है, एक कला है सतगुर दी। ये सतगुर दी वडियाई है। दिस इज द ग्रेटेस्ट क्वालिटी सतगुर हैज। इनू कला कहते हैं, टैक्नीक कहते हैं, सर्व कला समर्थ कहते हैं कि तुसी मेरे वाइसिस नू कट देंदे हो। वाइसिस मेरिया बीमारियां हैं, मैं ये वास्ते तुहाडे डोर ते आया सी। दुख हमारे बख्शियन, बख्श दिता, अपनी कल धारी, अपनी कला धार के सतगुर ने मैनू सुमत बख्शी। जो माँ बच्चे को दुध पिलाती है ना, ये माँ बच्चे को अपनी कला दे रही है। माँ के खून पसीने के नाल जो कुछ वो दुध विच ट्रांसमिट हो जाता है, ये बच्चे वास्ते अमृत होता है। खीरधार बारक जब होता, इस तरह ये वो कला है, वो एक कला धारती है। सतगुर एक कला धारदा है, अपनी दुनिया भर के सारे ह्यूमन बींग्स नू, बच्चों को अमृत रूपी दुध देंदा है। अपनी कलधारी मन वांछित फल दित्तियां, ए मंग सी, ये जाचना सी, दे दिते, ग्रांट कर दिता। नानक बलिहारी, मैं अपनी मत दा बल तुहाडे अगे हारदा हाँ। आई सरेंडर माई सैल्फ। इसी करके तो मैं तुहाडे कोल आया सी। यू हैव डन, आई गॉट इट। जदों कोई चीज़ असी डिमांड करिए और वो मिल जाए, तो मिलन तो बाद जिहड़ी सानू अंदरों फुलफिलमेंट और कंटेंटमेंट होंदी है ना, उन्होंने कहते ने नानक नदरी नदर निहाल, निहाल हो जाना। आई गॉट इट सर, थैंक यू वेरी मच।